Zo, beste mensen, nogmaals een applaus van onze lilies. Zoals ik net ook aangekondigd had, is mijn Guruji hier aanwezig om ons verder te verlichten. En de tattwa's, Jiv Tattwa en Guru Tattwa wat ik vandaag behandeld heb, Tattva betekent waarheid, die in de Bhagavad Gita aangekondigd wordt. En waar Sri Krishna duidelijk net ook aangaf dat we die Paripati en Pariprasthina Sevaya Upadiksha Dipagyan Gyalina Tattva Darshan. Want het vers die ik uitgelegd heb, hoe belangrijk het is om een spiritueel Bhagwan zelf zegt. Wie zegt dat een spiritueel Bhagwan zelf zegt dat we een spirituele leraar moeten benaderen om deze kennis, deze waardevolle geheim, geheim tot ons te kunnen krijgen. Mijn Guruji's kan heel veel, maar hij kan helaas niet Nederlands spreken. Zodoende dat hij vandaag Hindi in combinatie met Engels gaat spreken. Maar voor de mensen die Hindi niet bemachtigd is, we hebben allemaal een hele mooie vertaalapparaat bij ons, waardoor iemand achter ook Hindi gaat vertalen in Nederlands. Dan kun je met middel van de koptelefoon nog ook alles meeluisteren. Dus voor mensen die moeite hebben met Hindi, kunnen hun handen even opsteken. En dan krijgen ze allemaal een vertaalapparaat, zodat jullie alles in details kunnen blijven horen. En ik zal morgen ook verder, waar mijn Guruji zijn filosofie zal beëindigen, zal ik hem morgen weer oppakken. En hij zal me weer daarop aanvullen. En dan ga ik verder zo. En zo hebben we het heel mooi hetzelfde voor jullie helemaal in elkaar gebouwd. En waar jullie eind van vrijdag allemaal grote pandits en pandita's gaan worden. En iedereen kan vertellen over de Bhagavad Gita. Ja? Bedankt nogmaals voor jullie aandacht tot nu toe. En als jullie nog even je handen voor de mensen die vertalen blijven opsteken totdat jullie een apparaat hebben, duurt eventjes. Het is ook een beetje een lichaamsoefening. Maar dan weten we zeker dat er ook een echte apparaat met jullie komt. Hartstikke bedankt. Nogmaals een applaus voor Bhaktivedanta van Maharaj. कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्कृते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग सब हिंदी समझते हैं? कितने लोग हिंदी समझते हैं? रेज योर हैंड। अच्छा, कुछ लोग हिंदी समझते, कुछ नहीं समझते। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्माद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद
अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिवानारायण गोस्वामी के चरण स्पर्श करते हुए तत्पश्चात नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाल भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, श्रील गोविंद गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त सज्जन वृंद सभियों की सादर अभिनंदन। अभी अभी आप लोगों ने गीता, श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर आप लोग ने जीव तत्व के बारे में आप लोग ने श्रवण किया। ये गीता ऐसे जिससे समस्त विश्व में समस्त संप्रदाय के लोग उसके भी आदर करते हैं। ये गीता केवल हिंदू लोगों के लिए नहीं है। लोग सोचते हैं गीता ही केवल हिंदू लोग पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। गीता में जो कुछ भी स्वयं भगवान उपदेश दिया इस सभी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर सनातन धर्म के बारे में भगवान उपदेश दिया। सनातन धर्म की तात्पर्य है जहां पर नित्य रहता है। संस्कृत में कहते हैं सदा तनयति विस्तारयति इति सनातनम। सदा माने सर्वदा, तन्धातु विस्तारार्थे, जो सदा सर्वदा स्प्रेड होते रहता है, ऑल द टाइम स्प्रेडिंग, विस्तार होते रहते, कभी वो समाप्त नहीं है। इसी के सनातन कहा जाता है, जिससे कभी समाप्त नहीं है, अंत नहीं है, उसी कहा जाता है शाश्वत, चिरंतन कहा जाता है, इटर्नल एंड ट्रांसेंडेंटल कहा जाता है। वो सनातन धर्म की कथा स्वयं भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लक्ष्य करके समस्त जीवों के उन्होंने उपदेश दिया। क्योंकि हम हिंदू भी नहीं है, हम मुस्लिम भी नहीं है, हम क्रिश्चियन भी नहीं, हम बुद्धिस्ट भी नहीं है। हम कौन है? हम आत्मा है, सोल। सोल कोई हिंदू नहीं होता है, माने आत्मा कोई हिंदू नहीं होता है, आत्मा कोई क्रिश्चियन नहीं हो सकता है, और आत्मा कोई बुद्धिस्ट नहीं हो सकता है। आत्मा क्या है? इसी के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन की इस कथा, मावई वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातन, विनाश नहीं है। इस संसार में जितने भी वस्तु हम देख रहे हैं वो क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि जो आत्मा जो तत्व जो है वो परिवर्तन नहीं है, उनके विनाश नहीं है। इसलिए स्वयं भगवान पहले दो तत्व के बता रहे हैं, एक आत्म तत्व, एक अनात्म तत्व। अनात्म तत्व जिसे जो है वो परिवर्तनशील है, जैसा हमारे शरीर है। ये शरीर क्या है? परिवर्तनशील है। एक दिन मैं छोटा था, मातृगर्भ से मैं जन्म लिया। सभी लोग लिया, मैं नहीं लिया, आप लोग भी सभी लिया। मातृगर्भ से हम जन्म लिया। फिर मातृगर्भ से जन्म के बाद फिर मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मेरा बचपन बीत गया, बाल्यक, कैशोर, यौवन, जरा। गीता में भगवान कहते हैं हमारी इसी प्रकार बाल्य होता है, कैशोर होता है, फिर यौवन और फिर जरा। जरा में बुढ़ापा आ जाता है, धीरे धीरे 80-90 साल हो जाता है, तो धीरे धीरे हमारी सारी इंद्रियां काम नहीं कर रहा है। आंख देख नहीं पाते, कान सुन नहीं पाते है? अभी आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे? क्यों? अभी आपकी इंद्रिया काम कर रहे हैं। 80 साल नहीं हुए अभी तो। कौन 80 साल हुआ? नो।
अभी 80 साल कोई नहीं हुआ है, इसलिए सब सुन रहे हैं आप। क्यों कलयुग हो जाता है, डिफेक्ट है। आंखों की तरह हम देख रहे हैं, किंतु जब 80-90 साल हो जाएंगे, 100 साल हो जाएंगे, फिर हमारे जितने भी इंद्रियां जो है, चोख, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, धीरे धीरे सब जवाब दे रहे, जवाब मैंने काम नहीं करेगा। और अंत में क्या होगा ना, एक दिन इस शरीर को हम छोड़ देंगे। ये संसार के लिए नियम ही है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम, गीता में भगवान करे, इस संसार में जो जन्म लिया उसको क्या करना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। बुढ़ापा के आप जीत नहीं सकते हो, यू कैन नॉट कंकर द ओल्ड एज। जितने भी मेडिसिन लेते रहे, जितने भी कुछ भी करते रहे, एक दिन हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। नियम क्या है, इसे हमें छोड़ना पड़ेगा। मैनी मोटर, हम ये शरीर को हमें छोड़ना पड़ेगा। इसी गीता में पहले से भगवान कृष्ण शरीर के बारे में बता रहे हैं, ये शरीर अनित्य है। और बाल पैसा जीवन जरा इसी तरफ एक एक करके चले जाते हैं। जो आत्मा वो क्या चीज है, वो आत्मा शरीर में रहती है। ये शरीर में जब तक वो रहती है, तब तक हमारे शरीर के सारी इंद्रियां काम करती रहती है। आप बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं हम, किस लिए, आत्मा शरीर में है। क्या यदि कहो, आपके प्रश्न कर सकते हैं, आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ रही, इसलिए कहते हैं अरे वो आत्मा दृष्टो निधिध्यासी। उपनिषद में इसलिए कह रहे हैं, उस आत्मा के देखने के लिए आप प्रयास करो, क्योंकि वो आत्मा जो चिन्मय है, उस चिन्मय शब्द जो है कहा जाता है ट्रांसडेंटल कहा जाता है। ये जड़ आंखों के द्वारा, जड़ इंद्रियों के द्वारा, कानों के द्वारा, नाकों के द्वारा हम उसको अनुभव कर नहीं पाएंगे। वो अपराकृत दिव्य जो है ट्रांसडेंटल, उसको जानने के लिए, अनुभव करने के लिए क्या चाहिए न, अपराकृत ट्रांसडेंटल हमारी इंद्रियां आदि चाहिए उसको देखने के लिए। तो आप कहेंगे जो उसको हम कहां मिले देखने के लिए, आत्मा को हम देखेंगे, तो उसके लिए कहते हैं तद्वृद्धि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिनो। भगवान कृष्ण अर्जुन की यही उपदेश दे रहे, वह आत्मा की यदि आप जानना चाहते हो, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो यू हैव टू नो अबाउट हिम। यदि उसके बारे में आप जानना चाहते हो, क्या करो, प्रणिपात परिप्रश्न, ऐसे संत महात्मा के पास जाओ जिसके अनुभव है। ऐसे संत महात्मा के पास जाकर के उनके पास क्या करो, पहले प्रणिपात, उनके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके दीन होकर के प्रश्न करो, परिप्रश्न, उसके बारे में पूछो। और पूछने भी नहीं, उत्तर भी नहीं देंगे ठीक से, सेवया, उनकी सेवा जब करेंगे तब वो प्रसन्न हो जाते हैं। जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तब सारे तत्व हमारे हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है, उदित हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान करें तद्वृद्धि प्रणिपात परिप्रश्न सेवया। सेवा वृत्ति जब तक हम नहीं जगे तब तक वो वस्तु हम प्राप्त कर नहीं सकते। जैसे गाय दूध देती है, कब देती है, बछड़े को। तो बछड़े जब तक नहीं हो, गाय दूध नहीं देगी, तो चुरा लेती है गाय दूध के लिए।
किंतु जब वही गाय जब बछड़े के समय पास आ जाती और बछड़े के देखते ही गाय के थन से जो है अपने आप वो दूध आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम ऐसे संत महात्मा निकट जाते हैं और दीनहीन होकर के उनके निकट प्रश्न करते हैं, चैलेंज नहीं, कोई लोग कहते हैं चैलेंज मोड होता है, मैं चैलेंज करता हूं, तो चैलेंज मोड से नहीं होगा, क्योंकि ये पारमार्थिक वस्तु है, स्पिरिचुअल थिंग। अपने अनुभव वो उसी प्रकार व्यक्ति के निकट कहेंगे जो दीनहीन होकर के आते हैं। हम जब दीनहीन होकर के उनके निकट प्रार्थना करते हैं, यदि मैं योग्य हूं आप कृपया मुझे बताइए, यदि मैं योग्य हूं, आप यदि अपने समझ रहे हैं मैं योग्य हूं, तो आप मुझे कृपा करके बताइए। जब इसी प्रकार आपके दया न रहेगा, ह्यूमिलिटी रहेगी, तब वो व्यक्ति आपके निकट उस सारे तत्व के प्रकाश करता है। इसी के संग भगवान कृष्ण अर्जुन के कहने लगे, अर्जुन तुम जो जीव तत्व, मैं तुमको जो समझा रहा हूं उसके समझने के लिए प्रयास करो। ये संसार में जितने भी देख रहे हैं ये सब मुझसे ही प्रकटित हुए हैं। जतोबा इमानी भूतानी जेन जातानी जीवंती जब जिज्ञासा तत् ब्रह्म। इस संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? मूविंग एंड नॉन मूविंग, समझ रहे? कोई चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं, जिसका हम संस्कृत में कहते हैं स्थावर और जंगम कहा जाता है। स्थावर जंगम, मूविंग एंड नॉन मूविंग। जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, ईंट पत्थर से लेकर के मनुष्य से लेकर के जीवात्मा, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये सब कहां से निकले हुए हैं? इसे कहते हैं जतो वै इमानी भूतानि जेन जातानि जीवंती जद जिज्ञासा तत् ब्रह्म। ये सब मुझसे ही निकल करके आया, मैं ही प्रकट कर दिया, और मैं ही सब जीवों के जो है मैं ही रक्षा करता रहता हूं। इस संसार में जितने भी लोग देख रहे हो, कौन रक्षा करते हैं? भगवान रक्षा करते। इसलिए एक शब्द हम कहते हैं, राखे होरी मारे के, मारे होरी राखे के। एक मार नहीं सकते, और इफ आप यदि भगवान चाहे कौन रक्षा करे? भगवान चाहे हम शरीर छोड़ दे तो कोई हमें रक्षा नहीं कर सकता। महाभारत में यही दिखा रहे हैं। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के सातों रथियों मिलकर के मार दिया। अर्जुन के पुत्र कौन था? अभिमन्यु। द्रोणाचार्य आदि, जयद्रथ आदि, ये सभी एक ही साथ में घेर करके, चक्रव्यूह में घेर करके, और उस समय उनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं था, निहत्था था, ये अस्त्र नहीं था। और उस समय जयद्रथ अभिमन्यु के मार दिया। और कृष्ण अर्जुन के जब ये समाचार मिली, अर्जुन ने क्या की? प्रतिज्ञा कर लिया, जब काल सूर्यास्त के पहले यदि मैं जयद्रथ के नहीं मार दिया तो मैं स्वयं ही आग में जाकर के कूद जाऊंगा, समाहित हो। समझ में? मैं ही अपने आप को अग्नि में, आग में अपने को समाहित करूं, बस। कौरव लोग बहुत प्रसन्न हुए, काल की युद्ध है, अंतिम युद्ध काल होगी। क्यों? किसी प्रकार से हम जयद्रथ के यदि हम बचा करके रखे तो अर्जुन अपने आप आग में जल जाए, और अर्जुन मर जाए तो पांडव में कोई बड़े योद्धा नहीं है, हम लोग के साथ टक्कर ले। गुरु द्रोणाचार्य के साथ कौन टक्कर ले सकते हैं? गुरु के साथ कौन टकराएगा?
Who can fight with द्रोणाचार्य? कर्ण, बड़े बड़े रथी महारथी, साधारण कोई नहीं है कर्ण, बहुत शक्तिशाली, सारी उनकी गुरु क्या नाम, कर्ण के गुरु जो है वो परशुराम है, भगवत अवतार, साक्षात भगवत अवतार परशुराम। परशुराम से सारे विद्या की प्राप्ति कर लिए, ऐसी कोई विद्या नहीं है। तो द्रोणाचार्य कर्ण के साथ कौन टक्कर लगा सकता, कौन टकराएगा? दुर्योधन दुशासन कोई कम नहीं है। तो इसलिए ये लोग विचार करने लगे, कौरव लोग, ये काल अंतिम युद्ध, ये किसी प्रकार से हम जयद्रथ की यदि बचा लिया तो अर्जुन अपने आप आग में जल जाए, मर जाए। और अर्जुन मर जाए तो पांडवों के कोई ऐसे योद्धा नहीं है कौरवों के साथ टकरा ले, युद्ध करेंगे। इसलिए दूसरे दिन प्रातः काल में सूर्य उदय होने के साथ ही साथ शंख बजाया दोनों दल, और जानबूझ करके स्वयं कृष्ण अर्जुन के लेकर के आगे चले। एक एक रथी महारथी को युद्ध करते हुए कृष्ण अर्जुन चलने लगे रथ को लेकर के आगे, और सारे पांडव, सारे कौरव लोग उनको बहुत दूर तक रख दिया जयद्रथ को। जयद्रथ के पास पहुंचने में कम से कम तो सूर्यास्त हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक सभी रथी महारथी के हरा करके पराजित करने के बाद जयद्रथ के पास पहुंचे। स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन की सारथी बने, रथ चला रहे हैं, और कृष्ण भी घनाघोर युद्ध आदि करने लगे। अर्जुन घनाघोर युद्ध आदि करने लगे, किंतु संभव नहीं है कि उसके पास पहुंच जाए। स्वयं भगवान चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी, कौन जाने उनके लीला क्या करते हैं। भगवान ने किया कि ऐसे लीला रचाया, सभी लोग देख रहे हैं, सूर्यास्त हो गया, सनसेट, सूर्यास्त हो गया। बस सूर्यास्त अर्जुन को भी पता भी नहीं था कि प्रभु के लिए क्या लीला चल रही है। आगे सूर्यास्त हो गया तो सब स्वयं कृष्ण भी शंख बजा दी, और उधर से द्रोणाचार्य भी शंख बजा दिया, माने युद्ध समाप्त हो। आज के दिन अर्जुन दुखित हो गए। अर्जुन जब दुखित हो गए, स्वयं कृष्ण भी आदेश दिया, अर्जुन तुम तो आज जयद्रथ के वध कर नहीं सका, इसलिए तुम्हें अग्नि में कूदना पड़ेगा। सारी लकड़ी लेकर के एकत्रित किया, आग भी जलाया, और सारे कौरव और पांडव एकत्रित होकर देखने के लिए आए। अर्जुन कैसे आग में कूदे, देखने सब आ गए, देख रहे सब, और जयद्रथ बहुत प्रसन्न हो गए। जयद्रथ सामने आ गया। स्वयं कृष्ण अर्जुन के बोले, अर्जुन जाओ, तुम्हारे प्रतिज्ञा के अनुसार, केतु भाव, तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम आग में जाकर के कूदो। अर्जुन सभियों की वंदना करते हुए चलने लगे आगे। स्वयं कृष्ण कहने लगे, तुम्हारे गांडीव के हाथ में लेकर के जाओ। अर्जुन बोले, गांडीव लेकर के क्या करेंगे, आग में तो कूदना है, गांडीव मेरा क्या काम में आएगा, क्योंकि शाम तो हो गई, शाम हो जाने से युद्ध तो नहीं होता। बोला भगवान करे, नहीं नहीं, तुम्हारे गांडीव तो अपने हाथ में ले जाओ।
अर्जुन अपने गांडीव का हाथ में लेकर के चलने लगे। आग में कूदने के लिए जा रहे थे, अग्निदेव के स्तुति करके अर्जुन कूदने के लिए जा रहे थे। इतने समय स्वयं कृष्ण कहने लगे, अर्जुन ठहरो। स्वयं भगवान कहने लगे, अर्जुन ठहरो। बल्कि अर्जुन स्थिर हो गए। तो तुम्हारे हाथ में गांडीव है? बोले हाँ, गांडीव चलाओ। बोले किसके ऊपर? ये जयद्रथ, ये आतताई है। तो जयद्रथ खड़े हुए थे ना सामने। यही तुम्हारे पुत्र के जो है वध किया था, जिस समय तुम्हारे पुत्र के हाथ में कोई अस्त्र नहीं था, निरस्त्र था। और सभी लोग कहने लगे, नहीं, जयद्रथ के पास कोई अस्त्र नहीं है, युद्ध नहीं कर सकते। नियम तो आप लोग ने तोड़ा है? और युद्ध के प्रारंभ में क्या शर्त हुई? एक योद्धा जो दूसरे योद्धा के साथ युद्ध करेगा, दूसरे के साथ और नहीं। किंतु उनके साथ कैसे युद्ध हुआ? अकेले थे, अभिमन्यु अकेले थे उनके, और आप लोग साथ ही एक साथ में आकर उनको आक्रमण किया। तो नियम तो आप लोगों ने तोड़ा। बस भगवान कृष्ण अर्जुन की इंगित देने के साथ ही साथ अर्जुन ने क्या की? जयद्रथ को मार डाला। ये जयद्रथ बधिकार है। मेरे कहने की तात्पर्य यह है, यदि भगवान किसी की रक्षा करे कोई मार नहीं सकता, और भगवान चाहे हजारों व्यक्ति उसकी रक्षा भी करें, उसको रक्षा कर नहीं पाए। सारे कौरव लोग एकत्रित होकर के जयद्रथ के जो है रक्षा करने के लिए प्रयास किया, किंतु कर नहीं पाए। भगवान इसी को दिखा रहे हैं। इस संसार में हम लोग जो जीवित है, अभी हम सब कुछ चल रहे हैं। इसलिए हिंदी गर्व से आया, तुम्हारे आत्मा कहां से आई? शरीर माता पिता के द्वारा मुझे प्राप्ति हुई। वो आत्मा कभी मरता नहीं, नम्रियते, वो केवल एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चले जाते हैं। मृत्यु क्या है? क्या चीज? एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर कहा जाता है। ये जन्म मृत्यु जो है ये चलते जा रहे हैं अनादिकाल से। एक दिन नहीं, अनादिकाल से, अनलिमिटेड टाइम वी आर वंडरिंग इन द सेम साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। अनादिकाल से हम जन्म मृत्यु के एक चक्कर से हम घूमते जा रहे हैं, और अनेक शरीर को हम धारण करते जा रहे हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार हम एक शरीर को धारण करते जा रहे हैं। कभी स्त्री शरीर धारण कर लेते हैं, कभी पुरुष शरीर में आ जाते हैं, कभी गधे घोड़े होकर के जन्म ले रहे हैं, मनुष्य होकर के, कोई पशु होकर के, कोई पक्षी होकर के हम जन्म लेते जा रहे हैं। किंतु हम जिस शरीर में आ जाता है उसी शरीर का एक अभिमान हो जाता है। जैसे अभी हम लोग किस शरीर में आ गए? मनुष्य शरीर में आ गए। वी आर ह्यूमन बीइंग। अभी हम ये मनुष्य शरीर में आ गए, शरीर में आ गए, और शरीर के अभिमान भी आ जाता है। आत्मा जिस शरीर में आ जाती है उस शरीर के एक स्वाभाविक अभिमान आ जाता है। उसी के हम संस्कृत में कहते हैं देहात्म अभिमान कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द बॉडीली identification. American giving this identification. Then giving, I am lawyer, I am doctor, I am intelligent, I am foolish. Many kinds of you. These types of identification automatically come. Actually, आत्मा क्या है और वो आत्मा कहाँ रहती है, क्या करती है, ये भी आपके प्रश्न होगा। आत्मा कहाँ रहती है? देखा आपने आत्मा को? नहीं देखा आप लोगों ने?
घी घी देखा आप लोगों ने? Who has seen घी? दूध में है क्या? मैं आपको एक कटोरी दूध लेकर का दिखाता हूं। दिखाइए दूध कहाँ है? एक घी कहाँ है? घी पूरी सोच में नहीं दिखा सकते, डायरेक्ट नहीं दिखा सकते। यदि मैं आपके निकट अभी एक कटोरी घी रख दिया, एक दूध रख दिया, मैंने कहा दूध घी कहाँ है? दिखाओ। मेरे दूध में है कहाँ? दिख नहीं पड़ा। तो उस घी को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। दूध को क्या करना पड़ेगा? इसलिए दूध से ट्रांसफर क्या हो गया? दही हो गया, जोगट को क्या करना पड़ेगा? फिर मंथन करने से क्या मिलता है? मक्खन आ जाता है, बटर। फिर बटर को क्या करना पड़ता है? थोड़ा गर्म करके, गर्म करने से क्या हो जाता है? एक घी दिखाई पड़ता है। तो ये दूध में जो घी है उसको देखने के लिए इतना प्रोसीड्यूर हमें करना पड़ता है कि वो तर्क के द्वारा नहीं होगा। जो ही आत्मा को भगवान अथवा आत्मा को देखना चाहते हो तो कुछ काम करो। कौन कौन देखना चाहते हैं आत्मा और परमात्मा को? रेज है। डू यू वांट टू टेक दर्शन टू लॉर्ड? भगवान के देखना चाहते हो? श्योर। आप सच देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते? यदि सच देखना चाहते हैं, जैसे घी को आप प्रैक्टिकल रूप में देखना चाहते हो, तो इतने प्रोसीड्यूर करना पड़ता है, प्रोसेस। ठीक उसी प्रकार भगवान को दर्शन करने के लिए और अपने को दर्शन करने के लिए, जो आत्मा मैं कह रहा हूं, शरीर में जो आत्मा है उसको देखने के लिए आपकी कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा ज्यादा परिश्रम भी नहीं है, थोड़ा सा परिश्रम करो वो दिखाई पड़ेगा। कोई कहता नहीं मैं कुछ करना नहीं चाहता हूं, देखना चाहता हूं, तब नहीं। कुछ करना पड़ेगा। वो लोग क्या करना पड़ेगा? जी मैं भगवान के दर्शन करूं, करें, भक्ति करो। और सत्य है, भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव दर्शति, भक्ति वस पुरुष रूप। हमारे उपनिषद में कहते हैं, जैसे माता जी कह रही है, बात सत्य है। ये भक्ति जब तक हम नहीं करें तब उसको हम देख नहीं पाएंगे। भक्ति करना, ये भक्ति क्या है? मेरे प्रश्न है, भक्ति क्या है? भज्यते सेव्यते इति भक्ति। संस्कृत में भजता शब्द का अर्थ होता है सेवा वृत्ति, हैबिचुअल मोड, सेवा वृत्ति। जब हम भगवान की सेवा करेंगे, गुरु भगवान की सेवा हम करते जाएंगे, तो साक्षात रूप में वो हमें दिखाई पड़ेगा। जब हम सेवा नहीं करेंगे उसे दिखाई नहीं पड़ेगा। यही कहते जा रहे हैं, भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव दर्शयति, और भक्ति वश भक्ति घोषी। भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है भगवान। तो भक्ति क्या है? सेवा वृत्ति जाती। ये सेवा करने की वृत्ति सब में है। किसमें कोई सेवा नहीं करते? आप बताइए, हु डज नॉट सर्व? हम सब सेवा करते हैं, किंतु हम कौन सा सेवा करते हैं? माया की सेवा करते हैं, शरीर की सेवा हम करते हैं, मन की सेवा हम करते हैं। शरीर की सेवा करते ही नहीं करते हैं। हम हर रोज खाना खाते हैं, सोते हैं, इस शरीर की सेवा होता है। शरीर के लिए हम बहुत कुछ करते रहते हैं हर रोज। मन की भी हम सेवा करते हैं। मन के लिए हम क्या करते? एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। हम टीवी देखते नहीं, हमको पता नहीं। चलो आप देखे होंगे, आप लोग देखते होंगे शायद। टीवी किस लिए देखते हैं? मन को एंटरटेनमेंट करने के लिए,
काम करते करते थक जाते हैं, ऑफिस से आए हैं, रिमोट कंट्रोल को लगाया, देख लिया, समय भी नहीं है, थके हुए थे बस। क्योंकि मन को जो है हमें भी चाहिए, इसी कहते मन की सेवा करते हैं। अनेक प्रकार के एंटरटेनमेंट हम करते हैं मन के लिए, शरीर के लिए हम भी करते हैं, ये सब सेवा करते हैं, हृदय जड़ सेवा हो जाता है। आत्मा की सेवा करने के लिए वृत्ति क्या है, उसी की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि हम इस शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा की वृत्ति ही है भगवान की सेवा है, प्रभु की सेवा करना। ये बहुत सरल उपाय है, मैं बताता हूं। अभी 10 मिनट हो गया। बहुत सरल उपाय है, मैं बताता हूं आप लोगों को। प्रातः काल में उठिए, स्नान कर लीजिए, एक दिया जलाइए बस ठाकुर जी के लिए। दिया समझते हैं, दीपक जिसको कहते हैं, घी लैंप। ये घी लैंप ठाकुर जी के पास दिखा दीजिए बस, ये भी सेवा हो जाता है। एक कम नहीं है, ये भक्ति के अंग कहा जाता है, जिसे लिम्स ऑफ भक्ति। ठाकुर जी के दिया दिखाना ये कम नहीं है, साधारण नहीं है। एक गांव में एक छोटा सा मंदिर था, गांव के बाहर। नित्य प्रत्यह जो है पुजारी, जो ब्राह्मण जो है, वो मंदिर में जाकर के पूजा करते थे। तो एक दिन पूजा करने के बाद, और वो घी लैंप जो है, दीपक है ना, घी लैंप, घी वो मंदिर के अंदर छोड़ दिया, और धीमे धीमे करके वो जलने लगे, बुझने वाला था। ब्राह्मण तो दरवाजा बंद करके चले गए, और वो दीपक घी लैंप से बुझने वाला था। और इतने समय छोटा सा चूहा, माउस, चूहा समझते कि नहीं, माउस। अरे चूहा तो सबके घर में होगा सही। क्यों आपके घर में चूहा है भाई? क्या आप लोग चूहा खाते हो क्या? नहीं। तो चूहा घर में कैसे आ गया? भाई जहाँ पर अनाज होता है ना, वो चूहा अपने आप आ जाता है। और जिसके घर में अनाज, समझते हो, हिंदी में अनाज शब्द कहा जाता है, जैसे चावल दाल वो होता है। और जिसके हम कहते हैं जिसके घर में चूहा नहीं है, मतलब उसके घर में कुछ खाना नहीं, तुम्हारे घर में चूहा नहीं है, इसलिए आप लोग सब कह रहे हैं हाँ हमारे घर में चूहा है। मतलब क्या, आप लोग के घर में खाना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मांस चूहा, वो चूहा देखे कि घी के बत्ती जब वो बुझने लगे, थोड़ा सा धीमे धीमे जल रही, घी के सुंदर, चूहा ने उसको जाकर के पकड़ ली, दांत से पकड़, और रुई है ना, रुई उसके बिल्कुल जो दांत में लग के फंस गया। और इतने समय आग जलने लगी, तो धीमे धीमे आग चल रही थी ना, अब जल, वो छुड़ा नहीं पाए। हम तो छुड़ा दिए, छुड़ा नहीं पाए। बिल्कुल उसके सारे जो है वो मस्तक जो है सब जल गया, और ठाकुर जी के सामने ऐसे लोट-पोट करते। देखो हम लोग की भावना, भगवान की भावना में जो अंतर है, आवर कंसेप्शन एंड लॉर्ड्स कंसेप्शन कंप्लीटली डिफरेंस। भगवान के जब वो घी के बत्ती लेकर के मुंह में तो लगा, जब वो चूहा जब ऐसे ऐसे घूमने लगे ठाकुर के सामने, और अंत में उसने ठाकुर के सामने प्राण छोड़ दिया। ठाकुर जी कहने लगे देखो मेरा ये आरती कर दी। इसलिए मैं कहते ये घी लैंप यदि भगवान के निकट दे दे, उसके फल क्या होता है? वो चूहा तो शरीर छोड़ दे, उसके आत्मा कहाँ जन्म लिया? एक राजकुमारी होकर के जन्म लिया। भक्ति की इतना ताकत है, ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, ये सत्य है। इसलिए गीता में सब भगवान भी कहते हैं, जो मेरे थोड़ी सी कोई भक्ति कर देते हैं, नेहा भी क्रमणास उसके प्रत्यवान विद्यते सर्वों व्यस धर्म से त्रायते महतो भया, सामान्य रूप में कोई भक्ति कर देते,
ददामि बुद्धि योगम तम जेनो मां उपजान्ति ते। यानी गीता के बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। ददामि बुद्धि योगम, मैं उसकी बुद्धि योग दे देता हूं, बुद्धि दे देता हूं। थोड़ा सा भी भक्ति कर दे। शुचिनाम श्रीमताम योग भ्रष्ट वो भी जाते। थोड़ा सा कोई भक्ति कर रहे हैं, कर रही है, थोड़ी छूट गया, अगले जन्म में भगवान ऐसे धनवान के घर में उसको जन्म दे देंगे, जिससे कि भक्ति करने की किसी प्रकार की उसकी कमी न हो। हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम घी खरीद खरीद कर कहां से ले आएंगे? कहेंगे घी लग जाए, किंतु आपके ये घी बत्ती करने के लिए आपके कोई पैसा की अभाव नहीं हो, इसलिए भगवान क्या करेंगे? ऐसे धनवान घर में आपको जन्म दे देंगे। अगरबत्ती, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम ठाकुर जी का अगरबत्ती कहां से खरीद करके लाएंगे? अगरबत्ती नहीं देते, इंसेंस स्टिक कहां से? किंतु भगवान क्या करेंगे? ऐसे धनी घर में जन्म दे देंगे। जाओ, तुम्हारे कोई भक्ति करने के जितने वस्तु जो है कोई अभाव नहीं होता। गीता में स्वयं भगवान सूचिनांग श्रीमतांग दे योग भ्रष्ट हुई है। योग भ्रष्ट भक्ति करते करते, भक्ति योग करते करते कोई उसके शरीर पतन हो गया, माने शरीर छोड़ दिया, तो भगवान क्या करते? उसके क्या बहुत धनवान गृह में उसको जन्म दे देंगे, जिससे भक्ति करने में किसी प्रकार उसकी कमी नहीं आए, कमती नहीं। देखो, चूहा शरीर से कौन सा शरीर में चली गई? वो याद है? राजकुमारी होकर जन्म लिया। जो राजकुमारी राजा के घर में जन्म ले, उसके कोई धन कम है क्या? घी बत्ती के पैसा कम होगा क्या? हमारे पास तो नहीं है, किंतु उनके पास थोड़ी कम होगा। नहीं, 1 साल बाद 1.5 साल की लड़की थी वो, बड़े छोटी सी बच्ची, और अपने आप ठाकुर जी की वो घी बत्ती देकर को दिखाने लगे। देखो, आपके घर में भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो बच्ची होगी, सिखाया नहीं किसी ने, वो अपने आप आरती करती रहती है, अपने आप बजाती रहती है, क्योंकि इसको पूर्वजन की संस्कार कहा जाता है, जिसको द पास्ट इंप्रेशन। देखो ये लड़कियां, देखो कितना सुंदर में बजाते हैं, जो कोई सिखाया थोड़ी, ये बचपन से जो है बस देख देख करके अपने आप कर लेते, क्योंकि पूर्वजन के संस्कार है, इंप्रेशन है। कोई सिखाया नहीं कैसे गाना करना है, बस क्योंकि पूर्वजन में ये सब कर चुके हैं। इसलिए उसी प्रकार की गीता में भगवान कहते हैं, जो पूर्व जन्म में जो जो कर आए हैं वो उसी प्रकार चलते जा रहे हैं। स्वभाव हमारे भी बदले नहीं है, हम पूर्व जन्म में जैसे स्वभाव लेकर के आए उस स्वभाव में हम चल रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में कथा कर रहे हैं, वे कौन व्यक्ति नरक से आए हैं, कौन व्यक्ति स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग से आए हैं, हम कैसे उसको पहचानेंगे? How will know who has come from heavenly planet or who has come from hellish planet? कैसे समझेंगे? देखने में तो सब एक ही जैसे। आप लोग तुलसी रामचरितमानस पढ़ते, उसमें स्पष्ट लिखा है, पर उनके स्वभाव आचरण के द्वारा उनको पता चल जाता है। एक व्यक्ति बहुत धीर स्वभाव होता है, बोलते सुशील है, गुरुजनों की सभी में सम्मान करते हैं, परोपकारी है, दूसरे उपकार करते हैं। तो समझना चाहिए वो स्वर्ग से आए, he has come from heavenly planet। और एक कुछ लोग होता है ऐसे में देखेंगे, बिना कारण से आपके साथ झगड़ा करेंगे। देखिए रास्ते में चलते जाते कुछ लोग आपके साथ कोई संबंध नहीं है, आपने कुछ नहीं कहा, लड़की के छेड़खानी करना, टंटिंग में उल्टी सीधी बोलना, ऐसे कुछ लोगों के स्वभाव होता है। तो इसके द्वारा तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक व्यक्ति के स्वभाव देख करके आप समझ सकते हैं वो कहां से आए हैं, है कि नहीं? आप देखिए ना, रास्ते में चल रहे हैं, कहीं भी जा देखेंगे कुछ लोगों की स्वभाव उसी प्रकार है, दूसरे की शताना में टू गिव द पेस अदर्स।
लोगों के सताना, कष्ट देना कुछ लोगों का स्वभाव होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं परोपकारी या दूसरे की आनंद देते हैं, परोपकार करते हैं। एक व्यक्ति चल नहीं पा रहे हैं, लाठी एक लाठी में भर के उसको हाथ पकड़ करके रास्ता क्रॉस करा देते हैं, और एक व्यक्ति उसको ढकल देते हैं। ऐसे ही संसार में लोग हैं? एक व्यक्ति रास्ता क्रॉस कराने के लिए सहायता करते हैं, टू हेल्पिंग टू क्रॉस द रोड, और एक व्यक्ति क्या है, आप जा रहे हो उसके पीछे से ढकेल देते हैं। तो उसको समझना चाहिए इसकी कैसे व्यक्ति। इसलिए तुलसीदास जी का रामचरितमानस में स्पष्टीकरण कर दिया ये कौन कहां से आए, इसी की कहते जा रहे हैं। इसलिए हमारे स्वभाव जो कुछ भी है पूर्वजन्म की संस्कार, हम संत महात्मा के पास इसलिए आते हैं उसको ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। हम संत महात्मा के पास आ जाए तो हमारे स्वभाव चेंज हो जाएगा। हम जब संत महात्मा के पास नहीं आएंगे, ज्ञान के पास नहीं आएंगे, हमारे स्वभाव परिवर्तन होता है। हम तो नरक में आए, हम नरक में आए, किंतु हम यदि हम नरक में तो हमारे स्वभाव कैसे परिवर्तन कैसे होगा? How can change my nature when you come in front of साधु? इसलिए साधु संघ के लिए कहा जाता है। इसलिए तुलसीदास साधु संघ के लिए कहा है। साधु संघ प्रथम जो भक्ति जो है साधु संघ कहा जाता है, किंतु संत महात्मा के संघ से हमारे स्वभाव परिवर्तन हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। अभी टाइम हो चुके। वो जो कहानी था वो क्या हुआ उसका? हाँ, तो राजकुमारी जो है देखो बचपन से जो है वो पूजे करने लगे, करते करते फिर उनके संत महात्मा के संग हुई। मैं इसलिए कहा ना, क्योंकि हम जब ये भक्ति करते रहते हैं, ये भक्ति से संत महात्मा के संग प्राप्त हो जाता है, और संत महात्मा के संग से भक्ति आगे बढ़ जाती है, और भक्ति के द्वारा भगवान प्राप्त कर लिया। वो राजकुमारी फिर शरीर छोड़ करके वो साक्षात भगवान को प्राप्ति कर लिया, वैकुंठ में चली गई। ऐसे शास्त्र में लिखा कि जो भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते है भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं। बोले वही जब उनकी जो भक्ति करते हैं वह करती है, उनके समझना चाहिए उनकी अंतिम जन्म है, आना नहीं पड़ेगा। भवापो वर्गो ब्रह्मतो जदा भवे जनस्तुत सत समागमम, भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया। इस संसार में जी भ्रमण करते करते जब संत महात्मा के सानिध्य में आ जाए, निकट में आ जाता है, और संत महात्मा के निकट में आने के बाद संत महात्मा के सब उपदेश जब पालन करते हैं तब उनके अंतिम जन्म हो जाता है, और आगे जन्म लेना नहीं पड़ता है। इसलिए मैं भगवान के लिए ही प्रार्थना करता हूँ आप लोग सब भगवत नाम करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Bhaktivedanta Barbaraaj ki jai, Bhavita Samanar ki jai. Zo mensen, vandaag hebben jullie de eerste dag meegemaakt waarbij we de eerste waarheid van de Bhagavad Gita behandeld hebben. Er zijn namelijk 5 waarheden in de Bhagavad Gita beschreven, gesproken door Krishna. En de eerste waarheid was Jiva Tattva, maar er zijn nog 4 die overblijven. Dat is Bhagavan Tattva, Prakriti, Kaal, Karm. En alles resulteert op Bhakti Tattva. We zullen de komende tijd al deze waarheden stuk voor stuk per dag, een avondje, voor elke tattva, elke waarheid zullen we allemaal aan jullie presenteren, zodat jullie de complete Bhagavad Gita, de belangrijkste 5 onderwerpen, dat jullie dat helemaal grondig gaan begrijpen. Dus neem dit heel serieus. Het is een investering van 5 avonden, maar deze investering van 5 avonden gaan heel veel vruchten en voorspoed brengen in je leven brengen. Dat kan ik jullie garanderen. Dus neem het serieus. Ik wens jullie allemaal weer een fijne avond en ik hoop jullie dan weer morgen terug te zien. Bedankt nogmaals. De handout van vandaag zal ik vanavond via de mail naar jullie opsturen. Mochten jullie geen mail hebben ontvangen, mail ons dan naar info@vitaseminar.nl. Ook de mailadres waar je de aanmelding hebt gedaan. Na elke sessie die Vijay bespreekt, sturen we dus de handouts op. Dan kan je later nog een keer terugkijken. Het is heel veel informatie die op je afkomt. Maar na de eerste dag, die is heel intens, het is natuurlijk allemaal nieuw. Maar je zal merken als je de tweede, derde, de vierde en na de 5e dag, dat je dan een schat van kennis gekregen hebt. En de combinatie van de spreker, Vijay als spreker en daarnaast onze Guruji die in één keer eigenlijk gecondenseerde nectar schenkt. Dus zoveel informatie, maar ook zoveel kennis die je tot je krijgt. En we hopen dat jullie het allemaal zullen waarderen en deze sessies ook af zullen maken. En volgende week dus de verdiepingssessies op dinsdag, woensdag en donderdag. Vrijdag vliegen we terug naar Nederland. Dus dan is het helaas... Over een jaar komen we dan terug. En ja, we zijn hier met een heel team en ook wij vinden het heel erg inspirerend om jullie hier allemaal weer te zien. En wij hopen ook op jullie, we krijgen daar juist energie van. Want op een gegeven moment, het is de 4e keer dat we dit doen en elk jaar krijgen we weer berichten en wanneer komen jullie weer. Dus we hopen ook dit keer op een heel mooi seminar. De combinatie van Vijay nogmaals en Guruji is heel speciaal. Nou, dank jullie wel, hele fijne avond en tot morgen weer. और सब कुशल है? ठीक चल रहे? Last year also. Yeah. Remember? Remember. Yes. Yes. Sunday we go to house program. Oh, okay. Okay. Sunday 6 morning, food bar. Yes, we will do house program. Since 4 years, the first year she's already coming. Every year she's Every year. coming. Okay.
ठीक हो? प्रणाम कर रही कि नहीं? हाँ, करना ठीक है। और सब ठीक है? आपका क्या नाम है? रोशनी। आपका? आपका नाम क्या है? सरकार की अटेंडेंस अच्छी थी। जी जी पूरा